Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Today topic is on temporal database. So first question is, what are temporal databases? What is temporal databases? Let's begin. We will read about what is temporal databases. Temporal databases stores data relating to time instance. It offers temporal data types and stores information related to past, present and future time. Temporal database could be unitemporal, bitemporal और tritemporal. मीन्स जो डाटा बेस होता है वो टाइम के साथ स्टोर किया जाता है. जो टेम्पोरल डाटा का मतलब भी ये होता है कि जो भी डाटा हमारा स्टोर है वो टाइम के रिलेटेड होगा. टाइम का रिलेटेड मतलब चाहे तो वो पास्ट के साथ, प्रेजेंट के साथ और फ्यूचर के साथ रिलेट हो सकता है. ठीक है, दैट इज़ अ टेम्पोरल database. And what the types of temporal database? The first type is non-temporal database, which means ये जो नॉन टेम्पोरल डाटाबेस होता है ये टाइम के रिलेटेड नहीं होता. सेकेंड वन इज टेम्पोरल डाटाबेस. एज आई टोल्ड यू, टेम्पोरल डाटाबेस का मतलब होता है जो टाइम के रिलेटेड होता है हमारा डाटा. एंड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ टेम्पोरल डाटाबेसेस. कौन कौन सी डिफरेंट फॉर्म्स होती है टेम्पोरल डाटाबेसेस की? बिट टेम्पोरल, ट्री टेम्पोरल, यूनिटेम्पोरल. ठीक है, दीज आर द डिफरेंट टाइप्स. First one is non-temporal databases. What is non-temporal databases? Commercial database management systems such as Oracle, Sybase, Informix, and O2 allow to store of huge amount of data. This data is usually considered to be valid now. Past or future data is not stored. नॉन टेम्पोरल मीन्स कि जो डाटा हमारा टाइम के साथ रिलेटेड नहीं होता, इसमें सिर्फ वही डाटा कंसीडर होता है जो अब तक वैलिड होता है. ठीक है. पास्ट और डाटा, पास्ट और फ्यूचर डाटा इज़ नॉट स्टोर्ड. एज आई टोल्ड यू ना कि पास्ट और फ्यूचर डाटा इसमें नहीं स्टोर्ड होता. पास्ट डाटा रेफर टू data which was stored in the database at an earlier time instant and which might has been modified or deleted in the meantime. Past data usually is overwritten with new updated data. Future data refers to data which is considered to be valid at the future time instant. A DBMS stores the data in a well-defined format. A relation that DBMS, for example, stores data in a tables. Thus, a relational database actually contains a set of tables. Each table contains rows, means tuples, and columns, attributes. A row contains data about a specific entity. For example, an employee. Each column specifies certain properties of these entities. For example, the employee's name, salary, etc. मीन्स कि जो भी हमारा डाटाबेस डीबीएमएस में स्टोर होता है ना, वो एक वेल डिफाइंड मतलब ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में होता है. इसमें जो भी रिलेशनल डाटाबेसेस बनते हैं उनमें क्या होता है, टेबल्स होते हैं. टेबल्स में क्या होती हैं, टप्पल्स होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं. रोज़ को हम टप्पल्स भी बोल सकते हैं, कॉलम्स को हम एट्रीब्यूट्स भी कह सकते हैं. ठीक है. और जो भी इसमें डाटा होता है वो एक मीनिंगफुल फॉर्म में होता है. ठीक है. रोज़ में क्या हो सकता है, किसी की स्पेसिफिक एंटिटी हो सकती है. फॉर एग्जांपल कोई भी एम्प्लॉय है, उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकती है उसमें. ठीक है. हो सकता है उसका नेम एंड सैलरी का रिकॉर्ड हो उसमें. ठीक है. द फॉलोइंग टेबल स्टोर्स डाटा अबाउट एम्प्लॉयज़. तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको एक टेबल दिखाई दे रहा होगा. ठीक है. as shown, first is employee id, means imp id, name of employee, and department where he or she works, salary,
Object-oriented DBMS stores data about entities in objects. So each employee is actually an object. The type of an object specifies the properties the object has. An employee object thus has a properties such as name, salary, etc. तो आप यहाँ पर देख सकते हो जो भी एम्प्लॉय का नाम है, जो भी ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, इसकी फर्दर प्रॉपर्टीज़ है, जैसे कि वो कौन से डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, कितनी उसकी सैलरी है ना, दीज आर दी प्रॉपर्टीज़ प्लस ऑब्जेक्ट. Then set of objects of the same type are called collection. Thus, in an object-oriented DBMS, our database contains set of collections. तो इसमें जो सेम टाइप ऑफ हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं उसको क्या कहते हैं हम? collections. A first step towards a temporal database. तो what we read previous are non-temporal database, and now we will read about temporal database. A first step towards a temporal database thus is to timestamp the data. This allows the distinction of different database states. One approach is that a temporal database may timestamp entities with time period. आप देख सकते हो ना, जो भी यहाँ पर टेबल हमें दिखाया गया है इसमें हर एम्प्लॉय की आईडी है, प्लस उसकी प्रॉपर्टीज़ है, प्लस उसका वैलिड टाइम एंड स्टार्ट एंड एंड है ना. इसमें हमें डिफरेंस पता चल जाता है. पहले तो ये डिस्टिंक्शन ऑफ डिफरेंट डेटाबेस स्टेट्स, ठीक है, इसका डिफरेंस पता चलता है हमें. हम जो भी एम्प्लॉय है काम कर रहा है वो कितनी सैलरी ले रहा है, कौन से डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, ठीक है. और जितने भी इसमें हमारे जो भी कॉलम्स हैं उसमें मेंशन किया गया है उनके डिफरेंट जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी, है ना. Another approach is the time stamping of the property value of entities. In the relational data model, tuples are time stamped, whereas in object-oriented data model, objects or attribute value may be time stamped. ठीक है, आप देख सकते हो जितने भी कॉलम्स हैं इसमें वो क्या है, टाइम स्टैम्प्ड है, मतलब कि उसमें टाइम मेंशन किया है, मगर रोज में ये चीज़ नहीं है. द above valid time table stores the history of the employees with respect to the real world. The attributes valid time and valid time and actually represent a time interval which is closed as its lower and open and upper bound. सो आप देख सकते हो इस टेबल में उन्होंने, जैसे कि फर्स्ट हमें रीटा है, ठीक है, रीटा की किस डिपार्टमेंट में काम कर रही है, कितनी सैलरी है और कितने टाइम पीरियड के लिए ये उसकी सैलरी जो है वैलिड रहेगी. जिस लाइन में आप देख सकते हो रो में है 1NF लिखा, इसका मतलब होता है कि फर्दर नोटिस तक उसका जो भी सैलरी है वो भी डिसाइडेड नहीं है कि उसका टाइमिंग एंड टाइमिंग उसका क्या है. बाकियों की टाइमिंग दी हुई है कि यहाँ से यहाँ इस ईयर तक इसका जो सैलरी है ये था, ठीक है. तो दैट इज़ हम ये हमारा क्या है, वैलिड टाइम, ठीक है. द नेक्स्ट द लास्ट वन इज़ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ temporal databases. कौन कौन सी है, valid time and transaction time. So that is our today's topic. I hope you can understand and thank you for watching this video.